and dispersion forces, that is London force. So iron dipole means what? One of the species is an ion, either cation or anion, and the other molecule, other species is a dipolar molecule. So if it is a dipolar molecule, suppose it is a dipolar molecule and one cation is present, then the positive charge of cation will be attracting the electrons, that is the negative pole of the molecule. This is called iron dipole interaction. Hydrogen bond we discussed already, that it is a type of dipole-dipole interaction between hydrogen and a highly electronegative element. Dipole-dipole means both the molecules are dipole and opposite poles are attracting one another. Ion-induced dipole means one molecule is an ion, either cation, a molecule or ion, maybe a species. One species is an ion, that is either cation or anion, and the other species is a neutral molecule. Okay. When ion is approaching to the neutral molecules, then due to the impact of the ion, if it is positive charge, it will be attracting the electrons of the neutral molecule, and a dipole is induced in neutral molecule because of the presence of cation or anion. It is called ion-induced dipole. Dipole-induced dipole means one molecule is dipolar and the other molecule is non-polar. So our dipolar or a polar molecule when approaches, its negative pole will attract, repel the electrons to one end, and it will introduce a dipole in the other molecule also. So after the, it is called dipole-induced dipole, means one dipolar molecule is inducing dipole in another non-polar molecule. And dispersion forces also I have discussed, that is, it is a weak force. Van der Waals का ये सबसे weak force है. यहाँ पे what happens exactly? The electrons revolves around the nucleus, and at a point, for a small moment of time, the electrons get gathered at one place and a negative pole is developed over there. It will start repelling the electrons of the other non-polar molecule, and as a result, a dipole is created in the neighboring molecule also. And there will be a temporary weak force of attraction between the two non-polar molecules. So this is what I have discussed. Now, here the states of matter, the gaseous states, the properties are discussed. I think you all are knowing what is gaseous state. The gaseous state is characterized by the following physical properties. Gases are highly compressible. आप जानते हो कि we can compress gas. Solid cannot be compressed. Liquid is also not compressible. अगर हम compress भी करते हैं तो very small amounts से. Gases exert, मगर gases जो है highly compressible है. Gases exert pressure equally in all directions. Gases have much lower density. The volume and the shape of gases are not fixed. Gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid. दो गैसेस को अगर आप मिक्स करते हो, तीन गैसेस को मिक्स करते हो तो इवनली वो मिक्सअप होता है. तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ये आप जानते हो, कोई चीज इसमें ऐसा नया नहीं है. अब हम आज बात करेंगे, आज जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म atmospheric pressure? Children, you all have heard about this word, atmospheric pressure. It is the pressure exerted by atmosphere on the surface of earth. That means, what is atmosphere? It is a mixture of gases. So we are having a blanket of gaseous mixture around the earth, and this gaseous mixture or these gaseous particles are having certain mass, and because of that mass they are exerting pressure on the surface of earth. So pressure per unit area, that is force per unit area. What is pressure? Force per unit area is called pressure. That means we can just see that this is our earth, और इस अर्थ पर हम अगर एक छोटा सा स्क्वायर यूनिट लेते हैं, जैसे 1 स्क्वायर इंच ही आप ले लो, तो वो 1 स्क्वायर इंच को आप पैरेलली अपवर्ड लेते जाओ, जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे. तो ये आपका ये एक स्क्वायर इंच हमने लिया. अब इस स्क्वायर इंच अर्थ के टुकड़े पे जितना भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, तो अप टू द लास्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट. तो ये जो फोर्स वो एक्सर्ट करते हैं इस यूनिट एरिया पे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. और चूंकि ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स एक्सर्ट कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, दिस इज कॉल्ड
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मेमोरी में रखना है। वैसे आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा हुआ भी है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बात करते हैं तो अलग अलग यूनिट में बात करते हैं। पास्कल्स में, दैट इज एटीएम में। तो अर्थ के सी लेवल पर तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट इज 1 एटीएम, एंड 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg या 760 तो हम अब बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हम कैसे बैरोमीटर से इसको फाइंड आउट। देखो यहाँ पे आप समझो, मैंने एक सिंपल आपको एग्जांपल दिया है। जस्ट यू टेक अ ट्यूब, एक आप कोई भी ग्लास ट्यूब ले लें एंड यू जस्ट फिल द मर्करी, or you take a trough also, a container which is also fixed with mercury. Now you just invert the tube and try to keep it on the level, mercury level in the trough. But be very particular that no air enters in the tube. आपको ये ट्यूब को इस पे इन्वर्ट करते समय बहुत ध्यान रखना है कि कोई इसमें एयर ना चला जाए। जब आप इस ट्यूब को मरकरी से भर के और इन्वर्ट करेंगे इस पर, तो ये जो मरकरी है बिकॉज ऑफ इट्स वेट मास, ये थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड इट विल फॉल डाउन। बट एट द सेम टाइम ट्रफ में जो कंटेनर है, इस कंटेनर में व्हाट एवर मरकरी इज प्रेजेंट, तो ये जो ओपन स्पेस है यहाँ से ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव इस पर रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लेयर पर आएगा, सरफेस पर, मरकरी के सरफेस पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इस पर पड़ेगा तो मरकरी विल ट्राई टू एंटर इनटू द ट्यूब। नेचुरली जब आप ऊपर से प्रेशर डालते हो तो ये मरकरी कहाँ जाएगा? इट विल ट्राई टू एंटर द ट्यूब, ट्यूब में एंटर करेगा। और ट्यूब में जो ऑलरेडी पहले से मरकरी प्रेजेंट है वो अपने वेट के वजह से डाउनवर्ड पुश करेगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो जाएंगे एंड अ लेवल यू विल फाइंड ऑन द ट्यूब। ये लेवल जो आप कैलकुलेट, आप जब इसको मेजर करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 76 सेंटीमीटर या 760 mm। तो यही इसको कोरिलेट किया गया, सेंटीमीटर से प्रेशर को कोरिलेट किया गया। दैट मीन्स ये लेवल जो ये हाइट है मरकरी ट्यूब में, जो हाइट मरकरी का होता है दैट इज 76 सेंटीमीटर या 760 mm। तो इसमें इस समय जो भी मरकरी के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हम इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर जो है सी लेवल पर इसको देखा गया है, जो इज कमिंग आउट टू बी 760। सो 1 atm इज इक्वल टू 760 mm और 76 mm। ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पी प्रेशर यहाँ पे जो लग रहा है, ये प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, जो प्रेशर होगा, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा साइड वाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उतना ज्यादा मरकरी का हाइट कॉलम पर होगा, और जितना कम प्रेशर होगा उतना हाइट भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि मरकरी कॉलम में, यानी कि ट्यूब में जो मरकरी का कॉलम है वो जितना ज्यादा हाइट होगा, इसका मतलब उसको साइड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है दैट इज हायर। और ये तो अगर डिपेंड कर रहा है हाइट पर, तो हम एक बार यहाँ पर आपको दिखा दें कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू जी, तो इट विल बी मास इनटू जी बाय एरिया। और व्हाट इज मास? density into volume. So you can write density into G into volume. And what is volume? Volume क्या होता है? Area into length. तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया अगर आप कैंसिल कर देते हो तो आपका बचता क्या है? Density into G into length. That length we are writing here in the form of H, height. तो आपका प्रेशर क्या हुआ? डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रो, डेंसिटी। डी से भी लिख सकते हो, रो से भी लिख सकते हो। एंड जी इंटू एच, जो लेंथ है कॉलम हाइट का, वो एच हो गया।
व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? जो आपका ट्यूब में जो लिक्विड है उसका डेंसिटी इंटू जी इंटू कितना हाइट उसका है, मरकरी कितना हाइट है उसके कॉलम में, दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री विल गिव यू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स, या जो भी है प्रेशर हम किसी का भी फाइंड आउट कर सकते। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल हियर। आप कह सकते हो कि ट्यूब का कोई खास, अगर हम बात करें कि जो ट्यूब हम ले रहे हैं वो ट्यूब हम कुछ भी ले सकते हैं। एक ऐसा ट्यूब भी ले सकते हैं जिसका डायमीटर कम है, एक ऐसा भी ट्यूब ले सकते हैं जिसका डायमीटर ज्यादा है, एक ऐसा भी ट्यूब ले सकते हैं जो हाइट में काफी ज्यादा है, एक ऐसा भी ट्यूब ले सकते हैं जो कि इंक्लाइंड है। तो कोई भी तरह का ट्यूब आप ले रहे हो, बट जो आपका मेजरमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? अगर आपका ट्यूब डायमीटर में कम है तो इसके अंदर एनक्लोज्ड मर्करी जो है अमाउंट वो भी कम होगा। तो अब आप यहाँ आते हैं, जब आपका डायमीटर ज्यादा है तो इसके अंदर एनक्लोज्ड मर्करी भी ज्यादा होगा। तब दोनों का मेजरमेंट सेम कैसे होगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे जैसे ही आप डायमीटर बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। आप यूनिट सरफेस एरिया की बात करेंगे, यहाँ भी यूनिट सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो सरफेस एरिया सेम है तो फोर्स भी आपका जो एक्सर्ट होगा वो सेम, तो प्रेशर विल बी ऑल्सो सेम। अगर हम इंक्लाइंड ट्यूब की बात कर रहे हैं तो इंक्लाइंड ट्यूब में भी हम हाइट की जब बात करते हैं तो हम वर्टिकल हाइट की बात करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं। तो ये यहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा लेवल है मरकरी का उसका परपेंडिकुलर हाइट, देन इट विल बी सेम। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा चाहे आप ट्यूब कैसा भी ले। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ये आपका 3 ट्यूब दिया हुआ है, ये 3 ट्यूब है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ यू ट्यूब में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेशर को। तो मान लो हमारा एक ओपन यू ट्यूब है, इस ओपन यू ट्यूब में हमने कोई लिक्विड डाल दिया, कोई भी लिक्विड आप डाल सकते हैं, आपका लिक्विड वाटर भी हो सकता है, आपका लिक्विड मर्करी भी हो सकता है, या कोई और भी लिक्विड हो सकता है। तो इस ट्यूब के ऊपर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इस ट्यूब के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दोनों तरफ प्रेशर सेम लग रहा है, तो इसलिए आपका जो लिक्विड है वो सेम लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है, सेम लेवल पर ये आपको मिल रहा है। दैट मीन्स P1 प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। बट अगर आप एक तरफ भी प्रेशर बढ़ाते हैं, सपोज यहाँ पर P1 इज ग्रेटर, तो क्या होगा? ये पुश करेगा लिक्विड को, तो लिक्विड विल राइज अप टू दिस लेवल। ठीक है, तो जब लिक्विड इतने लेवल पर बढ़ जाएगा तो दिस मच अमाउंट से इसका प्रेशर बढ़ेगा। व्हाट इज दिस अमाउंट? यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2, बट व्हाट इज P3, सॉरी, P1 इज इक्वल टू P3, बट व्हाट इज P3? P3 आपका है P2 प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, और इतना अमाउंट से जो लिक्विड बढ़ा है, तो इतना अमाउंट से जो लिक्विड बढ़ा है कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, यानी कि आपका जो ये P3 प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है वो कितना हो गया? अब ये कितना, एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लग रहा था, तभी तो लिक्विड पुश हो रहा है, तो कितने अमाउंट से P1 का प्रेशर ज्यादा है? तो P1 का प्रेशर बाय एन अमाउंट PGH से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लो वाइस वर्सा यहाँ ले लें, अगर इधर से इस ट्यूब पर प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो लिक्विड यहाँ से पुश होकर के इधर बढ़ जाएगा। तो ये हम तरीका है फाइंड आउट करना कि कैसे हम हेलो मैम। प्रेशर ऑफ द एयर, कोई भी गैस आप एक सिलेंडर में लेते हैं, कोई कंटेनर में लेते हैं, एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड, तो आप मैनोमीटर इस ट्यूब से आप, यस मैम प्रीवियस वाला फिर समझा जी ना, वीडियो पॉज हो गया था आपका। लास्ट वाला, यस ये वाला, यस मैम। ओके,
ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर है। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर्स आर डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इन एन एक्सपेरिमेंट। तो आप कोई भी गैस एक्सपेरिमेंटल गैस आप लेते हो और आप चाहते हो कि मेरा हमें पता चले कि इस गैस का प्रेशर क्या है, तो उसके लिए एक डिवाइस है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर दो तरह का होता है, एक ओपन यूट्यूब और एक क्लोज यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट में मैनोमीटर का यहाँ पर दे रही हूँ कि ये आपका एक मैनोमीटर है। सपोज दिस वन, ये ओपन ट्यूब है। ओके, ये आपका ओपन ट्यूब है। ये ट्यूब यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, यानी कि यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इस ट्यूब में एक लिक्विड फिलअप किया हुआ। आप लिक्विड कोई भी ले सकते हैं, मरकरी, वाटर, अल्कोहल, जो भी लिक्विड आप चाहे आप उसको रख सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो आपने एक लिक्विड यहाँ, जनरली हम लोग लिक्विड में मरकरी ही लेते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है कम वॉल्यूम में। तो ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंटेशन में जो लिक्विड लेते हैं वो मरकरी लेते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। तो जब आप एक ओपन यूट्यूब में लिक्विड लेंगे तो ये लिक्विड अपने आप ही लेवल को बराबर कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन ट्यूब है, यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर पड़ रहा है और यहाँ से भी इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर exert हो रहा है। सेम प्रेशर इज exerted in the two ends of the tube। तो two ends of the liquid पर प्रेशर सेम exert हो रहा है और अंदर में लिक्विड सेम है। लिक्विड में भी, लिक्विड की डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लिक्विड आपने रखा है, तो प्रेशर जो भी exert हो रहा है वो सेम अमाउंट से exert हो रहा है। तो ये लेवल भी दोनों सेम रहेगा। जब अगर ये दोनों लेवल आपको एक्सपेरिमेंट में सेम मिल रहा है, मतलब P1 गैस या जो भी आपका गैस एक्सपेरिमेंटल गैस P1 है, वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P2 गैस भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, या आप कह सकते हैं। अब दूसरे में आपको दिखा रहे हैं ये एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि आपके पास दो गैसेस हैं, एक P1 और एक P2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर P1 गैस है तो इसने क्या किया है, इसने लिक्विड को इतना प्रेस किया है कि लिक्विड का लेवल शिफ्ट करके यहाँ तक चला गया। कैन यू सी? ये आपको दिखाई दे रहा है कि P2 वाले एंड में लेवल बढ़ गया है। तो ये लेवल बढ़ने का मतलब क्या बता रहा है कि यहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तभी तो लिक्विड को ये पुश कर रहा है और पुश करके लिक्विड यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो P1 है और ये P2 प्रेशर है, इस ट्यूब पर P1 प्रेशर लग रहा है और इस ट्यूब पर P2 प्रेशर लग रहा है। और यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर जब हम लेते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ पे दोनों का लिक्विड सेम है, तो दोनों का लेवल जब सेम है यानी कि P1 प्रेशर जो है वो P3 प्रेशर के बराबर है। तो P1 प्रेशर P3 के प्रेशर के बराबर है, बट व्हाट इज P3 प्रेशर? P3 प्रेशर जो है, ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है एयर का या एटमोस्फेयर का या जो भी गैसियस है, वो प्रेशर जो लग रहा है P2 वो है, प्लस ये लिक्विड भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड? ये होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू हाइट। तो PG रो GH, ये एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। तो इसका मतलब है कि P3 अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इस अमाउंट से P2 प्लस PGH अमाउंट से बढ़ गया, प्रेशर ज्यादा लगा। अब ये तीसरा केस हम ले रहे हैं, इस केस में वाइस वर्सा है। यहाँ वाइस वर्सा का मतलब इस ट्यूब पर प्रेशर ज्यादा लगा है और इस अमाउंट से यह बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी P1 प्लस रो GH। तो इससे हम कोई भी प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब किसी भी मैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो हम मैनोमीटर से कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ दूसरा एग्जाम्पल, ये एक क्लोज एंड टाइप मैनोमीटर है। क्लोज एंड टाइप मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा। सो हाउ वी कैन मेजर? तो आप ये स्क्रीन को ध्यान से देखिए, पहले तो इस स्क्रीन को देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। नाउ सपोज ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल गैस फील्ड है, ठीक है, और ये हमारा क्लोज ट्यूब मैनोमीटर है। मतलब मैनोमीटर का एक एंड जो है इस गैस कंटेनर के साथ फिक्स लगा हुआ है और दूसरा एंड जो है वो सील्ड है, ऊपर से सील है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर नहीं पड़ रहा है और अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ है, सपोज मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, अगर ये गैस
अब ये जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि इस गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया, तो प्रेशर एक्सर्ट किया तो लिक्विड शिफ्ट कर गया इधर। तो ये खुद ही बता रहा है कि जो लिक्विड शिफ्ट हो रहा है वो बता रहा है कि आपका जो गैसियस प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अगर वो बराबर पे रहता तो दोनों एक लेवल पर रहता, बट ये क्या क्या पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। बाय व्हाट अमाउंट? तो बाय एन अमाउंट, ये इतना लिक्विड है, इतना लिक्विड का जो प्रेशर होगा उसी से ज्यादा है। तो इस लिक्विड का प्रेशर क्या होगा? रो जी एच। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी मतलब ग्रेविटी, और एच का मतलब जितना कॉलम में हाइट बढ़ा। तो ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई प्रेशर, दोनों अगर प्रेशर सेम रहता तो P1 इक्वल टू P2 होता, बट अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो कितने अमाउंट से ज्यादा? PG H अमाउंट से ज्यादा। कितने अमाउंट से वो ज्यादा हुआ? तो आपका गैसेस प्रेशर कितना लगा? PGH लगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जहाँ गैस का प्रेशर कम है। तो गैस का प्रेशर कम है तो बाय व्हाट अमाउंट कम है? देखो आप यहाँ गैसेस प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर देखो गैसेस प्रेशर लग रहा है, बट लिक्विड का लेवल इधर ज्यादा है और ये लेवल इधर कम है। इसका मतलब है कि गैस ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो कम है और यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो ज्यादा है, तभी ये लिक्विड को पुश करके इधर देगा। किस अमाउंट से ज्यादा है? तो PGH रो GH अमाउंट से ज्यादा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे तो अगर जब नहीं लगता तो P1 इक्वल टू P2 होता है। P1 इज गैसियस प्रेशर और P2 क्या है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों सेम नहीं है, क्योंकि आपका जो गैसियस प्रेशर है उसमें P रो GH अमाउंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। कितने अमाउंट से ज्यादा है? रो GH अमाउंट से ज्यादा है। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो गैसेस प्रेशर प्लस रो GH इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गैसेस प्रेशर क्या हो गया? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो GH। मतलब गैसियस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, ये बाय एन अमाउंट रो GH कम है। आप देखिए ये एक्सपेरिमेंट आप क्या बता रहा है कि इस तरफ लेवल आपका, इस तरफ आपका लेवल ज्यादा है, इस तरफ लेवल कम है। कितने अमाउंट से कम है? दिस हाइट से। इस हाइट में कितना लिक्विड है? तो इस हाइट में लिक्विड H हाइट का है, ग्रेविटी G है और इस लिक्विड का डेंसिटी रो है। तो रो GH अमाउंट से ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो GH अमाउंट से ये कम है, कम है। ठीक है, ये क्लियर है कि मैं आगे बढ़ूं या फिर से एक बार और एक्सप्लेन चाहते हैं आप? मैम एक बार आप बता दो। हमें फिर से कर देखिए दो कंडीशन मैंने दिया था। एक पहला कंडीशन ये है, इस कंडीशन में आप देखिए, इस कंडीशन में क्या है, इधर आप देखिए इस ट्यूब में और इस ट्यूब में, यहाँ पर आपका जो इस ट्यूब के ऊपर खाली जगह है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ से आपका गैसियस प्रेशर, जो गैस का प्रेशर आप लेना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। जब ये इसका प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो वो कब होगा? जब ये दोनों सेम लेवल पर होगा। मतलब इस लेवल पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गैस ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया और एटमॉस्फेयर ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, ये P2, इस लेवल पर दोनों सेम है। बट आप देखिए कि यहाँ P2 में जो प्रेशर है वो इतने अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्यूब को देख के ही समझ सकते हैं कि गैस जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो लिक्विड पुश होकर इधर चला। तो गैसियस प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गैसियस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितने अमाउंट से ज्यादा है? दिस मच अमाउंट से। और इस इतने अमाउंट में प्रेशर कितना क्रिएट होगा? ये होगा डेंसिटी ऑफ द गैस इनटू G इनटू H। तो ये आपका बन जाता है, जो गैसियस प्रेशर है वो आपका बन जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G इनटू H, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आपका सॉरी अगर हम बात करते हैं अब इस केस में अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिए, इस केस में ये गैस है, एक्सपेरिमेंटल गैस, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। बट आप लिक्विड का लेवल देखिए,
इस तरफ लिक्विड ज्यादा है और इस तरफ कम, इसका मतलब इधर प्रेशर ज्यादा लगा है और इधर प्रेशर कम लगा है। इधर प्रेशर ज्यादा लगा है इसलिए लिक्विड पुश होकर के इधर चला। तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, गैसियस प्रेशर कम है। बाय व्हाट अमाउंट? तो गैसियस प्रेशर कम है बाय एन अमाउंट PGH फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P नहीं सॉरी रो GH, यानी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ये क्लियर हुआ? अगर Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. तो अब ये क्लियर हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब हम गैस के लॉ पे जा रहे हैं, गैसियस लॉ। तो गैसियस लॉ में अगर हम जाते हैं तो कोई भी लॉ, कोई भी जो साइंटिस्ट है वो गैस के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए गैस के पैरामीटर्स को उन्होंने स्टडी किया। पैरामीटर्स क्या होते हैं, गैस के लिए क्या पैरामीटर होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है और उसमें गैस है, तो उसकी ये उसका पैरामीटर नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक सिलेंडर है उसमें मेरा गैस भरा हुआ, दैट इज नॉट द पैरामीटर। अब हम उस गैस को स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो उसको स्टडी करने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज को समझने के लिए उसके पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। पैरामीटर्स को समझने का मतलब है कि भाई जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या है, जो सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है वो कितने मोल्स हैं उसके, 1 मोल है, 2 मोल है, 0.1 मोल है, कितने मोल्स हैं। पैरामीटर हमको समझना पड़ेगा कि जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है किस टेम्परेचर पर रखा गया है, या फिर सिलेंडर के अंदर जो गैस है प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है। तो दीज आर द पैरामीटर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम है, ये पैरामीटर्स। तो इन पैरामीटर्स को समझने के लिए और अलग अलग साइंटिस्ट ने उनका रिलेशन बताया कि भाई ये पैरामीटर्स हैं और हाउ दीज पैरामीटर्स आर कोरिलेटेड विद वन अनदर, एक दूसरे से इनका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट सामने आए वो हैं बॉयल्स। बॉयल लॉ कहते हैं इसको, पीवी रिलेशनशिप कहते हैं। पीवी रिलेशनशिप का मतलब हो गया बॉयल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताया। एक गैसियस स्टेट में हाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन volume. What is the relation between pressure and volume? Then other parameters were kept constant. अगर आप 2 पैरामीटर का रिलेशन बताएंगे, 4 पैरामीटर मैंने आपको बताया, चारों पैरामीटर आप लिख लीजिए नोटबुक में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब एक एक करके साइंटिस्ट ने 2-2 पैरामीटर के बीच में रिलेशन बताया, बट 2 का रिलेशन हम तब बता सकते हैं जब बाकी 2 पैरामीटर हमारे कांस्टेंट हो जाएं। जैसे बॉयल्स ने कहा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, बट ही केप्ट टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट किया उन्होंने और साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट किया। तो व्हाट बॉयल्स शेप, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? On the basis of his experimentation, Robert Boyle reached to the conclusion that at constant temperature, the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its volume. मैं पढ़ दी हूँ बट मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। What Boyle has said. Boyle's law states that किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था बॉयल्स ने, कीपिंग टेम्परेचर एंड द मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, एंड ही स्टडीड। तो उन्होंने क्या स्टडी किया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं प्रेशर। आप एक सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर में एक पिस्टन होना चाहिए, मूवेबल पिस्टन, और वो सिलेंडर जो होना चाहिए आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर राइज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट आपको मेंटेन करना है उसमें। और अब आप उसको क्या करिए कि गैस को प्रेस करिए। जब आप गैस को, सिलेंडर को, यानी कि पिस्टन को मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो आप इमेजिन करो कि एक पिस्टन आपने लिया, सिलेंडर लिया, उसमें एक पिस्टन है और पिस्टन को आप डाउनवर्ड पुश कर रहे हो। तो डाउनवर्ड पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, यस और नो?
टेल मी। अगर आप एक सिलेंडर लेते हो और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लेते हो, उस सिलेंडर में गैस फिल्ड है और पिस्टन को आप दबाते हो। जब आप पिस्टन को दबाते हो तो धीरे धीरे पिस्टन नीचे आता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? Yes, यस और ma'am. नो? Yes, ma'am. यस। देन व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रेशर? Increases. Ma'am, increases. प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यस। अब मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपने एक बैलून लिया और बैलून में आपने कुछ गैस भर दिया, इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है। अब आप उसको क्या करें, स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप चाह रहे हो कि मैं अब बैलून को स्क्वीज करूं, छोटा करूं। तो जब आप उसका वॉल्यूम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? Balloon प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ जाता है। बैलून फट जाता है ना? Yes, ma'am. यस और Pressure. बैलून Yes. बैलून फट, जोर से उसको प्रेस करते हो, स्क्वीज करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? बैलून लास्ट में बर्स्ट कर जाता है। क्यों बर्स्ट करता है? क्योंकि जैसे जैसे आप वॉल्यूम उसका घटा रहे हो वैसे वैसे बैलून के अंदर जो गैस, उसका प्रेशर बढ़ रहा है और बैलून का मेम्ब्रेन उतना प्रेशर को एग्जर्ट मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो फट जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ये बात? तो प्रेशर Yes. और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट वाज सेड बाय बॉयल्स। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्लियर है या नहीं है, पहले मुझे बता। Yes, Yes, ये ma'am. कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। बट द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो आई कैन राइट P is equal to K/V. K is constant of proportionality. Yes or no? लिख सकते हैं कि नहीं? P is proportional to 1/V. तो 1/, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए इक्वल टू साइन अगर हम लगाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो P is equal to K/V ये आ जाएगा आपका, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए तो PV is equal to कांस्टेंट आएगा। यस और नो? PV is equal to कांस्टेंट होगा। जस्ट यू सी, PV is equal to कांस्टेंट। तो PV कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? PV is equal to कांस्टेंट का मतलब होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। अगर आपने किसी गैसियस सिस्टम में अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट लेते हैं और आप उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम घटेगा, और अगर आप प्रेशर घटाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इस तरह से कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आए। ये मीनिंग क्लियर है? मेरा लैंग्वेज क्लियर है? अगर Yes, मान लो ma'am. कि किसी सिस्टम में प्रेशर 2 है और वॉल्यूम 4 है, आप वॉल्यूम 2 करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 4, ताकि 4 × 2 8 हो जाए। बात समझ में आई मेरी? यस? बढ़े आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो PV इज कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट है तो आई कैन राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट होगा। यहाँ क्लियर है? सो दिस इज योर बॉयल्स लॉ कि कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मेरे ख्याल से इस बात को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से कोई ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, इसको आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ये आइसोथर्म ग्राफ है। तो यहाँ पर देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बॉयल्स लॉ का दे रही हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, y एक्सिस पे प्रेशर रखा है और x एक्सिस पर वॉल्यूम रखा है, और वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा? जैसे जैसे आप वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये कर्व लाइन आपको मिलेगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे लेते हो P और 1/V, P और 1/V